عدلیہ کی آزادی کی جدوجہد ہو، اظہار رائے کی آزادی خطرے میں ہو، وکلا برادری ہراول دستہ بن کر میدان میں موجود رہی ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ انفارچونیٹلی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے، جب سے خطرناک پہلو قوم میں مسلسل گہری ہوتی مایوسی اور کربناک بے بسی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب قومیں مایوسی کی دلدل میں پھنستی اور دھنستی ہیں تو پھر اس قوم کے بقا کے سوال جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جیسے دانشور اچھی طرح جانتے ہیں کہ قوم کی مایوسی کس طرح تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے۔ آج 74 سالوں کے بعد قوم پھر سے سوال اٹھا رہی ہے، اور ہمیں جواب درکار ہے، قوم کو جواب درکار ہے۔ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہ جواب درکار ہے، اور جب تک ان 22 کروڑ عوام کو ان کے بنیادی سوالات کا جواب نہیں ملے گا، ہماری حالت نہیں سدھرے گی۔ اگر سوال کرنے والے کی زبان کھینچ لی جائے تو اس سے ملک تو حل نہیں ہوتے، مسائل تو حل نہیں ہوتے۔ آج بھی زبان کھینچی گئی ہے نا، یہ ابھی تارے شارے ہمارے کاٹ کے، تو یہ بھی تو زبان کھینچنے والی بات ہے۔ کیا اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اور پھر سوال کرنے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کر دینے سے سوال ختم ہو جائیں گے؟ بدقسمتی سے موجودہ دور جو ہے، یہ فریڈم آف سپیچ اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے سیاہ ترین دور ثابت ہوا ہے۔ سیاسی مخالفین ہوں، صحافی، کالم نگار یا سچ بولنے والی کوئی آواز ہو، اس کو اپنے سوال کی پاداش میں غائب کر دیا جاتا ہے یا قید کر دیا جاتا ہے، یا پھر جو کچھ ہوتا ہے سلوک وہ آپ جانتے ہیں، گولیاں ماری جاتی ہیں، پروگرام یا کالم کی اشاعت بند ہو جاتی ہے، یا پھر نوکری سے نکلوا دیا جاتا ہے۔ ایسے سیاہ قوانین تیار کیے گئے جن کا مقصد سچ بولنے کی زبان بند کرنا ہے، اور یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ابھی حال ہی میں دیکھا ہے، اور کب سے دیکھ رہے ہیں کہ آئین یہاں ٹوٹتے ہیں، قانون یہاں ٹوٹتے ہیں، عدالتیں یہاں ٹوٹتی ہیں، اور من پسند ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے یہاں لیے جاتے ہیں، ڈکٹیٹروں کو لیجیٹمیسی یہاں ملتی ہے، اور ریاست کے اوپر ریاست یہاں چلائی جاتی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی فیکٹریاں یہاں لگائی جاتی ہیں، ووٹ کو عزت یہاں نہیں ملتی، اور آر ٹی ایس یہاں بند ہوتا ہے، ووٹ یہاں چوری ہوتا ہے، یہاں منتخب حکومتوں کے خلاف دھرنے کروائے جاتے ہیں، کیے بھی جاتے ہیں اور کروائے بھی جاتے ہیں، حکومتیں یہاں بنائی جاتی ہیں اور گرائی جاتی ہیں، اور پارلیمنٹ کی سوورنٹی کا حال تو یہ ہے کہ چند منٹوں میں درجنوں قوانین بلڈوز کیے جاتے ہیں، جیسے آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہے۔ یہ ہیں خواتینوں حضرات، یہ ہیں وہ اسباب جو ہمارے زوال کا باعث بنتے ہیں اور زوال کا باعث بنے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ دنیا ہم پر ہنستی ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم پر دنیا پابندیاں کیوں لگاتی ہے، ہمیں کٹہرے میں کیوں کھڑا کرتی ہے، دنیا میں ہمارے کردار پر سوال کیوں اٹھائے جاتے ہیں۔
सियासतदान या मीडिया ही नहीं, आज जज भी सच बोले तो नौकरी से हाथ धोना पड़ते हैं। क्या ये हम सब के लिए सोच और फिक्र का मकाम नहीं कि आज जज भी इंसाफ के मुतलाशी हैं और जजों पर दबाव और ब्लैकमेलिंग से अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फैसले लिए जाते हैं। अखबारात में शहर सुर्खियां शाये हो रही हैं कि कैसे आला अदलिये के जज टेलीफोन कॉल्स के जरिए सजाएं दिलवाने और फिर जमानत ना देने के हुक्म सादर करते हैं। यह आपने देखा और सुना है। और अगर इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले मुंसिफ ही ना इंसाफी करेंगे तो फिर मुझे आप बताएं कि मुआशरा क्यों कर और मुल्क क्यों कर तबाह बर्बाद नहीं होगा। खुदा ना खास्ता, क्या इस इदारे और इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों को सोचना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया बैन अल-अक़वामी इंसाफ के इंडेक्स में कहां खड़ी है? क्या हमने मार्शल लॉ को लेजिटिमाइज नहीं किया? क्या हमने फौजी डिक्टेटरों के हुक्म पर पार्लियामेंट को तोड़ने के बाद उसे कभी बहाल किया? क्या हमारी अदालतों ने फौजी डिक्टेटरों को आइन में तरमीम की इजाजत नहीं दी? ये सब कुछ आपके सामने होता रहा है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसको ना हमने देखा हो, ना सुना हो, ना जाना हो। आइन ही हमारे इदारों की हदूद का तयन करता है और हमारे मसाइल के हल की यही चाबी है। आइन ने लकीर खींच दी है कि जिम्मेदारी क्या है और उसे किसे निभाना है, किसने निभाना है। इससे बड़ी बदनसीबी की बात क्या होगी कि इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरों ने सरेआम कहा, यहां तक कह दिया कि आइन कागज का एक टुकड़ा है जिसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। ये अल्फाज हैं, आपने भी सुने हैं, मैंने भी सुने हैं, टीवी पर भी सुने हैं, अखबारों में भी पढ़े हैं। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, हमें भी तो फिर अपना मुहासबा करना होगा और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना होगी। क्या इस कौम की किस्मत में यही लिख दिया गया है कि हमने दायरों का सफर ही जारी रखना है? 70 सालों से, 74 सालों से दायरों का सफर शुरू किया हुआ है और आज भी जारी है। क्या हमने अंधे, गूंगे या बहरे हैं, बहरे बन के रहना है? क्या हम भेड़ बकरियां हैं कि जिनको हाँक दिया जाए जिस तरह मर्जी? अब ये मामला पाकिस्तान की बका और सलामती का है और आइन पूरी वजाहत से बयान करता है, दो टोक बात करता है कि मुकद्दस वही है जो आइन की पासदारी करे और जो आइन की दीवारें फलांगे वो मुकद्दस नहीं बल्कि आइन का मुजरम है, मुल्क का गद्दार है, आइन का गद्दार है। और अगर आज हमने वक्त की पुकार ना सुनी और अपनी इस्लाह ना की तो हमारा मुस्तकबिल बहुत तारीक हो सकता है। पहले ही हमारी कौम बहुत हादसात का शिकार हो चुकी है। इस कौम और मुल्क की बका के साथ घिनौना खेल अब खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त हम सबको मिलकर एक कौमी बयानिए पर मुत्तफिक होने की जरूरत है। आइन की पासदारी, उसके साथ वफादारी और उसकी रोशनी में अपनी हदूद में रहकर फराइज की बजावरी, यही हमारे मसाइल का हल है। सॉरी। और इसके लिए वकला बरादरी
दानिश्वर, जमहूरियत पसंद मीडिया, सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक की तंजीमें अपना भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं और इसमें तलबा भी शामिल होने चाहिए। इन सब को अपना किरदार अदा करना होगा और तारीख गवाह के जब मुआशरा अपने नस्ब-ओ-लैन को तय कर ले तो फिर हर रुकावट खत्म हो जाती है। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का हक है कि उनको महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही से निजात मिले। उन्हें सेहत, तालीम, इंसाफ के बुनियादी हकूक मुयस्सर आए और ये किसी भीख या एहसान की सूरत में नहीं बल्कि अपने हक के तौर पे। दुनिया और खिते में वकूअ पजीर सूरत हाल पुकार कर हमसे इस्लाह अहवाल की दहाइयां दे रही है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर और हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। तो हमारे खिलाफ डॉन लीक्स का ड्रामा रचाया गया, झूठे मुकदमात बनाकर सजाएं दिलवाई गई और फिर आपने देखा है कि किस तरह से रुस्वा किया गया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सबको पाकिस्तान की खातिर और दस्तूर और आइन की हुक्मरानी की खातिर, रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत की खातिर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना होगा, एक कौमी एजेंडा बनाना होगा और उसे कौमी तहरीक की शक्ल देना होगी। मेरी गुजारिश है कि इस कॉन्फ्रेंस में दी गई तमाम तजावीज और सिफारिशात की रोशनी में फौरी हिकमत अमली मुरतब की जाए। सब लोग बैठे सर जोड़कर और एक हिकमत अमली मुरतब की जाए ताकि अमली जद्दोजहद की राह अपनाई जा सके। ये बहुत जरूरी है। हम बहुत लेट हो चुके हैं और मजीद ताखीर के हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। इस काम को आज ही बैठ के किया जाए, आज ही, ताकि जो कॉन्फ्रेंस हो रही है और जो कुछ हम सोच रहे हैं, कह रहे हैं और जो पूरा मुल्क कह रहा है, पूरी कौम कह रही है, उस पे फौरी तौर पे फिर अमल शुरू किया जाए और मुल्क को इस गहरी खाई में जो हम गिर चुके हैं उससे दोबारा उठाया जा सके, निकाला जा सके और दोबारा अपने मंजिल की तरफ हम इसको रवाना कर सकें। अगर ऐसा ना किया तो फिर इसको दोबारा निकालना, उठाना नामुमकिन हो जाएगा और तारीख आपको और मुझे, हम सबको माफ नहीं करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।